आवाज जा रही मेरी? श्रेया पांडे। श्रेया पांडे। Yes, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून बेटा। आप अपना सर मुझे आप स्क्रीन शेयर भी करनी थी। जी एक सेकंड मिला। एक सेकंड रुक जाइए। अब श्रेया पांडे किस क्रम पे हैं आप? थोड़ा सा क्रम संख्या बता दें आप लिस्ट में। सर मुझे क्रम संख्या नहीं पता, पर मैं कोई बात आइजर पुणे कोई से बात हूँ। ठीक है, कोई बात। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि कृपया करके लिस्ट ग्रुप में शेयर की गई है। आप लोग अपना सीरियल नंबर नोट डाउन कर लें और उसी क्रम से जो जिनको भी पेपर प्रेजेंट करना है वो हैंड रेज करेंगे, हम उनको अनम्यूट करेंगे। ओके। और अगर किन्हीं को स्क्रीन शेयर के लिए एट वंस टाइम केवल एक लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो जी श्रेया जी आप और अपने रियल नाम से जुड़े, जो भी नाम है आपने को रीनेम कर लें। ओके। श्रेया पांडे जी वीडियो ऑन करिए। ओके। जी सर। And you can share your presentation. Sir, it is showing only the host can share in the meeting. You are being allowed, no issue. You will be allowed. श्रेया स्क्रीन शेयर करें। जी सर, एक सेकंड। ओके। सर, is it visible? या विजुअल। Okay. A second. समय का Okay. ध्यान रखें, बहुत पार्टिसिपेंट हैं, तो आप ना शुरू करें श्रेया। जी सर, जी सर। Good afternoon to all the distinguished participants, faculty members, and scholars present here. I am Shreya Pandey, currently pursuing my PhD from IISER Pune, and I'll be talking about how ruin theory and artificial intelligence together forms a new framework for financial stability of India. India's vision for Viksit Bharat by 2047 places strong emphasis on building not only technological capabilities, but also resilient financial institutions. And insurance companies form a central pillar to that resilience because they absorb risk that would otherwise destabilize household markets and long-term investment behavior as well. So, understanding the stability of these institutions becomes a structural requirement for our nation. One of the most fundamental mathematical tools used to study the stability is ruin theory. Ruin theory examines the probability that an insurance surplus that at its capital position becomes negative over time as claims occur. In its classical form, the surplus process is expressed as a formula that you can see on the screen, where U is the initial capital, C is the premium rate, and ST denotes the aggregate claims up to the time T. The core question here is simple but quite essential, which is what is the probability that UT drops below zero? This is classical Claimer-Loonberg framework. Although it is mathematically elegant and historically foundational, its effectiveness relies heavily on assumptions such as Poisson claim arrivals, light-tailed claim size distributions, and stability of the underlying environment. These assumptions were reasonable for early actuarial setting, but they do not fully capture today's risk landscape. Modern financial and insurance risks are non-stationary, heavy-tailed, and even interdependent. Events such as pandemic that we had seen a few years back, climate-driven catastrophes, and cybersecurity breaches, and even global supply chain shocks introduce correlational structures and tail risks that classical models struggle to represent. As a result,
As a result, traditional ruin probabilities often underestimate the severity of the extreme event. This is where artificial intelligence provides a meaningful extension rather than a replacement to the model. So, AI and machine learning methods can work without restrictive assumptions about the underlying distributions. They allow non parametric estimations of both claim frequency and severity, incorporating high dimensional data and uncovering nonlinear patterns that are invisible to classical models. Deep learning and gradient boosting systems can detect shifts in risk behavior, adapting when claim patterns change or when external shocks occur. A significant application of this is in fraud detection. Machine learning models can analyze textual descriptions, claim histories, and relational patterns to identify anomalous and uncoordinated fraudulent activities. Reducing fraudulent claims directly reduces solvency pressure on our institutions and the insurers, strengthening their financial stability. AI also supports dynamic capital management. Using simulation based methods and reinforcement learning frameworks, insurance can adjust their reserve strategies in real time, reflecting changes in the market condition or observed claim behavior. This makes solvency management more adaptive and evidence driven than static regulatory formulas. More accurate risk modeling supports financially stronger insurance companies. Stronger solvency position enables wider and more affordable insurance coverage. This directly aligns with national goal related to economic transformation, governance, transparency, and even social equality. Better informed actuarial decisions also contribute to public trust, an essential component of a modern financial system. When insurers are stable, policyholders, investors, and regulators can respond with greater confidence, which in turn supports sustained economic development. To conclude, classical ruin theory provides a rigorous mathematical foundation for understanding the stability of insurance institutions. Artificial intelligence offers powerful computational tools that complement the extend this foundation. Together, they create a robust, adaptive, and realistic framework for addressing financial risks. As India moves towards 2047, integrating these approaches will be essential for building a resilient financial ecosystem capable of supporting inclusive and sustainable growth of India. Thank you. That would be all from my side. Any question? Any participants from Shreya Pandey? Any questions? Okay, thank you. Thank you very much, sir. Before we before हेलो अरे मेरे भाई एक माउस चाहिए था यहाँ पे स्टूडियो में हाँ हाँ नेक्स्ट कोई और कर सकता हूँ सीरियल नंबर नहीं अभी जी रेडी हैं आप? धर्मेंद्र जी कंप्यूट करें माइक ऑन करें yourself जी सर your presentation सर मैं धर्मेंद्र यादव असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय बिलोहा बलरामपुर से राजकीय महाविद्यालय एकेडमिक सोसाइटी उत्तर प्रदेश व उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज के तत्वाधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी ये इधर कैसे आ गए रोनिक पेपर विकसित भारत 2047 परंपरा परिवर्तन एवं 15 बौद्धिकता का समाहार का आयोजन के अवसर पर
आप सभी का हमारी तरफ से जो है नमस्कार सर। हमारे पेपर जो आज हम प्रस्तुत करने चल रहे हैं उसके प्रेजेंटेशन का जो पेपर का टॉपिक है, एक मिनट स्क्रीन शेयर। बताइए, आवाज आ रही है आप? हाँ सर, आवाज सर। सर हमारा टॉपिक सर है वैश्विक एकीकरण और मुक्त व्यापार के युग में विकसित भारत, आर्थिक लोकतंत्र, समावेशी नवाचार और सतत विकास की ओर उद्यमशील राष्ट्र निर्माण का मार्ग। सर आज के समय में अगर विकसित भारत का जो मूल मंत्र है वैश्विक एकीकरण और आर्थिक लोकतंत्र प्लस समावेशी नवाचार और सतत विकास को हम मिलाकर अगर बात करें तो उसका संदर्भ होता है विकसित भारत, जिसका ध्येय है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के जो सपना हम लोग साकार लिए चल रहे हैं, जिस तरफ हमारी सरकार अग्रसर है, हम लोग उसमें कदम से कदम मिलाकर अग्रसर हैं। उसका मूल मंत्र यही है। इस वैश्विक एकीकरण के लिए जो है विकसित और उद्यमशील राष्ट्र के लिए वैश्विक एकीकरण मुक्त व्यापार के अंतर्गत नए अवसर, बाजार भागीदारी और आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक समावेशिता के अंतर्गत सभी की भागीदारी और समानता, नवाचार उद्यमिता के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, क्षमता संवर्धन, सतत विकास और चुनौतियों के अंतर्गत जो है विषमता, पर्यावरण नीति संशोधन, स्किलिंग, दीर्घकालिक जैसे उपायों पर ध्यान देना कंपलसरी है। इसके साथ साथ अगर वैश्विक एकीकरण की हम विकास यात्रा की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव को हम मुक्त व्यापार, तकनीकी नवाचार, एकीकरण के संदर्भ में देख सकते हैं। जो राष्ट्रीय पहले हैं, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आर्थिक लोकतंत्र, ये सब इसमें जो है सब विकसित भारत के लिए एक आधारभूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान समय में उसमें सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं सामाजिक आर्थिक प्रभाव में युवा, महिला उद्यमी, ग्रामीण आबादी के उत्थान को भी हम शामिल कर सकते हैं। वह नीतिगत सिद्धांतों के अंतर्गत पारदर्शिता, सामाजिक समावेशन और पर्यावरणीय सततता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे लक्ष्यों को समाहित करते हुए हम विकसित राष्ट्र की संकल्पना को साकार कर सकते हैं। इस हमारे शोध पत्र की जो प्रासंगिकता है कि प्रासंगिकता जो हमारे शोध पत्र की है कि यह शोध पत्र जो है विकसित भारत 2047 के लक्ष्य हेतु तो आर्थिक लोकतंत्र, नवाचार और समावेशी विकास जैसे विषयों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य से जोड़ता है। लघु एवं मध्यम उद्योग, डिजिटल समावेशन, हरित अर्थव्यवस्था के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विषमता कम करने, अवसरों के समान वितरण के उपाय बताए गए हैं। इसमें हमारे शोध पत्र हमारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में भारत को आत्मनिर्भर और नवाचारी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस हमारे शोध पत्र का जो उद्देश्य है भारत में वैश्विक एकीकरण, मुक्त व्यापार नीतियों के लिए आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करना, समावेशी नवाचार एवं टिकाऊ विकास के अवसरों और चुनौतियों की पहचान करना। और इसकी जो हाई परिकल्पनाएं हमने ले रखी है सर, उसमें मुक्त व्यापार, वैश्विक एकीकरण के कारण भारत के आर्थिक बदलाव में गति आई है। समावेशी नवाचार ही टिकाऊ विकास और आर्थिक लोकतंत्र का आधार है। इसके लिए हमने जो मेथोडोलॉजी को अपनाया है सर, इसमें कुछ डेटा स्रोत, WTO, IMF, नीति आयोग की रिपोर्ट, साथ ही साथ विभिन्न देशों के तुलनात्मक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हमने स्टडी किया है। और इसमें अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमने भारत की GDP की जो वृद्धि दर है 2020 से 25 तक का डेटा लिया है। इसमें 2020 में भारत की GDP -23.1% रही, 21 में 22.6% और 24 में 7.8 और 2025 में 8.2 रही। और वहीं विदेशी व्यापार को देखें हम तो अगस्त 2024 में 68.3 मिलियन डॉलर रहा। अगर इसके हम निष्कर्षों की बात करें समग्र रूप से कहें तो पिछले एक दशक में सक्रिय नीति सुधार और वैश्विक एकीकरण, मुक्त व्यापार के माध्यम से भारत ने आर्थिक संकटों से उबरकर तेज और स्थिर विकास दर प्राप्त की है। वहीं वहीं स्टार्टअप, रोजगार सृजन में भी, विदेशी व्यापार में भी उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। अगर हम सुझाव और रणनीतियों की बात करें तो इस समग्र रोड मैप जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं इसमें हम देख सकते हैं कि आर्थिक और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंतर्गत नवीन तकनीक और प्रशिक्षण, निर्यात संरचना पर हमको बल देना होगा, जैसे मेक इन इंडिया, सरलतम नियम जैसे लॉजिस्टिक, सिंगल विंडो क्लियरेंस और नवाचार और डिजिटल सशक्तिकरण के अंतर्गत तीव्र ब्रॉडबैंड और ई गवर्नेंस, स्टार्टअप और इक्यूरेटर
समावेशी और हरित विकास के अंतर्गत पर्यावरणीय मानक और नवीकरणीय ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, स्वरोजगार जैसे उपायों को अपनाना होगा। वहीं वैश्विक एकीकरण के अंतर्गत हमें अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और रणनीतिक साझेदारी के तहत विश्व व्यापार संगठन G20 व्यापार जी संधियों। आप संक्षिप्त रखें और अपनी फाइंडिंग्स को कंक्लूड ठीक सर। करें। अब सर फाइंडिंग मेरी ये है कि मतलब हमारा पत्र जो ये दर्शाता है कि वैश्विक एकीकरण, मुक्त व्यापार, नवाचार, नीतियां, सुधारों के समन्वय से भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के मार्ग पर मजबूती से अग्रसर है। डिजिटल और स्टार्टअप अभियानों ने देश की प्रतिस्पर्धात्मक समावेशिता को सशक्त किया है। प्रस्तुत विश्लेषण भारत को आत्मनिर्भर, समावेशी, सतत विकसित राष्ट्र के लक्ष्यों और निर्णायक दिशा में अग्रसर है। धन्यवाद सर। धर्मेंद्र जी, यस सर। इंक्यूबेशन का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या है ये? आपने इक्विटी नाम दिया अभी, क्या सर? इंक्यूबेशन क्या है? आपने अभी सुना होगा, बहुत सारे सरकार की नीति चल रही है स्टार्टअप के अंतर्गत इंक्यूबेशन। इसमें सर छोटे छोटे जो उद्यम हैं सर उसको मतलब सशक्त करने पर बल देते हैं, ताकि जो सामाजिक विकास की धारा में जो सबसे अंतिम पायदान पर हमारे एनजीओ हम मतलब महिला हैं, गरीब हैं, उसको उसको सशक्त करके आगे बढ़ें, उसमें अपनी विश्वविद्यालयों भागीदार, में भी कुछ कार्यक्रम इसके अंतर्गत, स्टार्टअप के अंतर्गत चलाया जा रहा है? उसके एक भाग के रूप में सर, ताकि इसको सपोर्ट मिल सके। क्या नाम है विश्वविद्यालयों में जो चलाया जा रहा है? विश्वविद्यालय सर इसमें ध्यान नहीं आ रहा सर। इंक्यूबेशन सेल ही हर जगह स्थापित किया जा रहा है विश्वविद्यालयों में, इसके अंतर्गत, स्टार्टअप के अंतर्गत। जी सर। हम्म, जी, बहुत अच्छा था आपका, थैंक यू। धन्यवाद सर। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ धर्मेंद्र जी से, कोई भी पार्टिसिपेंट? ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद सर। दुर्गेश लता भगत, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज इटावा। आवाज जा रही है दुर्गेश जी? सहाज फातमी को नाम दिया। अलसहाज फातमी जी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आयुष। आयुष सिंह। Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। बस प्रेजेंट करता हूँ। जी, अपना पेपर प्रेजेंट करें। जी सर, बस 2 मिनट। सर मुझे करना है या कोई और कर रहा है? नहीं, अभी ये कर रहे हैं, इसके बाद आप करेंगी। ओके ओके, थैंक यू सर। और जिनको कहा जाए वो एकदम रेडी रहें। मिस्टर आयुष सिंह। अनम्यूट हाँ नहीं जी हो रहा सर, है सर ये। एक इस पर हो रहा था सर। स्क्रीन दिख रही है सर? नहीं, अभी आपकी स्क्रीन तो नहीं शेयर हो रही है। जी, आ गया। Okay, so good afternoon, everyone. Today, I will take you on to the world of human intelligence and artificial intelligence
which are no longer separate but deeply connected. So this is a paper that has been written by, along with Dr. Namita Srivastav, titled Social Competency Through Learning Intelligence and Emotional Intelligence in AI-Driven Environments. And it's a review paper. So to start with, AI has become embedded in our classrooms, in our classroom workspaces and therapy platforms. But there is this one major question that emerges, that how do humans continue to grow socially, emotionally, and cognitively in AI-driven environment? There comes the key, that is social competence is the ability to adjust behavior, communicate effectively, and engage empathetically. That is to become a core human asset in evolving landscape. So we begin by recognizing the artificial intelligence, which replicates essential cognitive processes like learning, reasoning, problem solving, and communication. And authors like Tiwari and Licardo and Lipovetsky, they show that how AI now spans machine learning, NLP, that is natural linguistic programming, robotics, computer vision, and beyond, all built to they build elements of our own intelligence. But there is this key, that emotional intelligence, as defined by Solovay and Mayer, remains uniquely human, and our ability to perceive feelings, regulate emotions, and act with empathy. Wherein, when we talk about learning intelligence is our ability to learn, it is to adapt and to transfer knowledge across different contexts. And when we talk about these two as a whole, EI and LI, that is emotional intelligence and learning intelligence, they become the backbone of social competence. And in AI driven environments, they gain more of the significance. Talking about how human intelligence interacts with AI, so the contemporary researchers have shown that human cognition and AI systems, they both influence each other in different powerful ways, like feedback loops, adaptive learning, behavioral tracking, emotional recognition, and collaborative engagement. But AI is not totally replacing human depth. Instead, it is acting as a mediating factor. It mediates emotional and social functioning that shapes how we think, how we learn, how we respond, and how we connect. When we talk about AI transformative force in the field of education, so education is the clearest domain, and there are different kind of interactions that unfold. So when we talk about AI driven systems, they personalize learning for each and every student to help them to adjust with their pace, with the difficulty, and with the content. Not only this, the AI driven environment also supports them to develop self directed learning, social emotional tracking, learning analytics, and collaborative problem solving. So there were researchers, while we were doing review of literature, there were researchers like Yunus Lev, Yu Yang, or Jures. They show that how AI, it helps to increase autonomy, motivation, metacognition, and also communication. So to sum it up in simple words, AI is making learning more smarter, deeper, and more personalized. When we talk about AI and its role in the personality development, so AI creates multiple pathways for like personality and its development. Not only this, it also helps in making decision that is based on feedback. It also helps in a consistent monitoring. And not only this, it also based on emotional based learning, and how emotions are an essential component to develop how we develop our interpersonal effectiveness or self-awareness. Seeing AI as a transformative pedagogical force. So our review, it further highlighted how AI's growing pedagogical significance is important. Why? Because when we talk about AI-driven systems that shape our learning, it enables personalized pacing and content delivery. It enriches collaboration learning through advanced analytics, and also strengthens self-directed learning via intelligence application. So additionally, AI and SEL, that is student emotional learning mechanisms, they enable early identification of socio emotional learning challenges, and also provide personalized interventions.
So this also reinforces how our educational ecosystems, they are grounded in very much human centered, culturally responsive, and ethically aligned AI integration. Not only this, we also covered the theoretical aspect. So in the theoretical aspect of organizational and therapeutic settings. So beyond education, AI also shapes our organizational behavior and digital therapeutic practices. So talking about AI in workplaces, so emotional intelligence with AI supports adaptive coping, motivation, self-directedness, and professional effectiveness, wherein social competence, it also enhances our relational engagement, communication, and normative behavior. Then AI enabled SELs, they also insight into foster emotionally informed leadership and decision making abilities. And when we talk about therapeutic context, it helps to develop our conversational agents. And not only this, but also emotional analytics and personalized feedback system. So together, emotional intelligence, self-directed learning, and social competence, they complement AI by grounding systems in emotionally authenticity and educational functioning with ethicality. Talking about the agendas for action or the necessary key points from the takeaway of the review. So, our analysis identifies the three major core areas. One is organization, therapy, and education. Starting with organization, aligns AI tools with principles of emotional intelligence and enhance how we can Basically, enhance just to our conclude yourself, leadership effectiveness and I communication. It conclude your also it also helps us to foster our well-being in the workplace settings. So when we talk about in the therapeutic aspect or in the therapy, it helps us to utilize emotion detection, softwares and AI supported therapeutic tools, and also the scalability and precision of the interventions, they also improves. In the field of education, paper. it helps us to Paper, Ayush, conclude yourself because we have multiple chances to so that we can provide another presenter. Yeah, sir. I'll just conclude. So, just taking the key from education, it also helps us to strengthen our SEL, that self-directed learning platforms, motivation, autonomy, and academic affairs. So, concluding and giving the future study implication altogether, there is the requirement of rigorous empirical validation and also long-term support, careful study of hybrid human AI models, robust ethical standards needs to be developed, and standardized administration tools are also necessary to develop. So this whole overview demonstrates us how artificial intelligence, learning intelligence, and emotional intelligence, that together constitute an interconnected framework for strengthening social competence as a whole in the field of AI-driven environments. So thank you. Thank you. Your paper is good. Any question? Any participants? Thank you, Ayush. Falsaz Fatma. नमस्कार सर मैं अल्शाज फातमी असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट म्यूजियम लखनऊ से। मेरा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअली मैंने टॉपिक लिया है रोल ऑफ द म्यूजियम्स टू अचीव 2047 विकसित भारत अचीवमेंट्स गोल्स। एक्चुअली क्या होता है कि सारी फील्ड को तो लोग इंक्लूड करते हैं, लेकिन म्यूजियम के ऊपर थोड़ा सा कम केंद्रित होते हैं। जब हम 2047 विकसित भारत की बात करते हैं सर, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है हमारा कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना, जिसमें म्यूजियम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि म्यूजियम्स जो होते हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, जो कि बहुत साइंटिफिक एंड कल्चरल होते हैं। प्रेजेंटली अगर हम देखें तो म्यूजियम बड़े बड़े एरिया में और बड़ी बिल्डिंग्स में स्टैब्लिश्ड होते हैं, जिसमें कि बहुत सारी लाइट्स लगी हुई होती हैं, डिस्प्ले एरिया होता है, और ये एक बहुत ही अच्छा एजुकेशनल, इंटरटेनिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस देता है जो हमारे वहाँ विजिटर्स आते हैं उनको। आज की डेट में 1176 म्यूजियम एस्टैब्लिश्ड हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें कि 141 म्यूजियम यूपी में हैं और 34 अपकमिंग म्यूजियम्स हैं यूपी में, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के रिकॉर्ड के हिसाब से।
तो म्यूजियम की एक बहुत इम्पोर्टेंट म्यूजियम एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम अपनी कार्बन फुटप्रिंट को एज ए म्यूजियम इंस्टीट्यूशन कैसे रिड्यूस करें और जो हमारे वहाँ विजिटर्स आ रहे हैं उनको हम कैसे प्रमोट करें। तो एज ए म्यूजियम इंस्टीट्यूशन हम लोग तो ऐसा करते हैं कि जो भी हमारे एग्जीबिशन मटेरियल्स हैं जिसको कि हम हर साल या 6 महीने पे या 10 साल या 3 साल पे चेंज करते हैं उसको हम रिसाइकल करते हैं। दूसरा, हम कार्बन फुटप्रिंट असेसमेंट करते हैं म्यूजियम एज ए म्यूजियम इंस्टीट्यूशन और म्यूजियम के स्टाफ का। और क्लीन एनर्जी प्रैक्टिसेस हम अप्लाई करते हैं जैसे सोलर एनर्जी। यूपी गवर्नमेंट ने म्यूजियम में गवर्नमेंट के जितने म्यूजियम्स हैं बड़े जैसे मथुरा, झांसी, गोरखपुर, कुशीनगर और लखनऊ में फुल्ली सोलर पैनल किया है इनको कि हम रिड्यूस करें एनर्जी को। और इसके अलावा बहुत सारे टेलर्ड कार्बन एमिशन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स हमने अप्लाई किए हुए हैं जिससे कि हम रिड्यूस करते हैं एनर्जी कंजम्पशन को। फिर हम लोग जो लाइट्स इस्तेमाल करते हैं, पहले जो है बल्ब्स यूज होते थे, अब एलईडी यूज होती है। रिन्यूएबल यूज ऑफ एनर्जी करते हैं, एनर्जी ऑडिट्स करते हैं। इसके अलावा सर जो हमारे वहाँ रेगुलर विजिटर्स आते हैं उनके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें हम उनको अवेयर करते हैं। इंडोर और आउटडोर दोनों टाइप्स के प्रोग्राम्स हम करते हैं, जाके भी करते हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ले लेंगे और आगे से। स्कूल से। यार रास्ता में इतनी जाम है। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल सर? बोले सर। आवाज आ रही है फातिमा जी? नहीं, वो नेक्स्ट डिस्कनेक्ट हो गया। आगे। शालिनी सिंह, यू आर रेडी? यस सर। सर आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी। सभी आयोजक मंडल को मेरा जो है धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे जो है इतना कीमती, इतने लगभग 450 की लिस्ट में मुझे जो है अपना शोध पत्र वाचन का समय दिया, इसके लिए आभार। मेरे आज शोध पत्र का विषय है वैदिक दर्शन, नैतिकता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानवता के लिए नई दशा। वैदिक दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा की प्राचीन और आधारभूत दार्शनिक विचारधारा है। वैदिक दर्शन का आधारभूत ग्रंथ अपौरुषीय वेद जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उससे संबंधित ग्रंथ है। वैदिक ग्रंथों में महज धार्मिकता ही नहीं अपितु मनुष्य जीवन को समग्रता से विचार किया गया है। वेद आर्य जाति के प्राण है, ये मानव मात्र के लिए प्रकाश स्तंभ है। विश्व को संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान देने का श्रेय वेदों को हुई है। वेद ही विश्व बंधुत्व, विश्व कल्याण और विश्व शांति के प्रथम उद्घोषक हैं। वेदों से ही आर्य संस्कृत का विकास हुआ है जो विश्व को धर्म, ज्ञान, विज्ञान, आचार विचार और सुख शांति की शिक्षा देकर उसकी समुन्नति के अनुरूप
संचालित करने था, बल्कि व्यक्ति, समाज और ब्रह्मांड के बीच सामंजस्य स्थापित करने की जीवन दृष्टि है। वैदिक दर्शन में हालांकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रत्यक्ष उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन यह आधुनिक विज्ञान की देन है। किंतु वैदिक दर्शन के मूल सिद्धांत बुद्ध, चेतना, ज्ञान, नैतिकता को समझने और मानवता को नई दिशा देने के लिए हमको नई दृष्टि प्रदान करते हैं। वैदिक दर्शन है पर चेतन सत्ता अपरा जिस तरह आवाज आ रही है। आ रही है मैडम, कंटिन्यू करें। जी, वैदिक दर्शन की दृष्टि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक शक्तिशाली उपकरण है पर चेतन सत्ता नहीं है। यह अपरा विद्या का उत्कर्ष है पर परा विद्या का विकल्प नहीं हो सकता है। वैदिक नैतिकता, धर्म और रीति के मार्गदर्शन में एआई मानवता के लिए वरदान बन सकती है, अन्यथा यह संतुलनहीन शक्ति भी सिद्ध हो सकती है। वैदिक दर्शन मानवता को केवल जीना नहीं बल्कि सही ढंग से जीना सिखाता है। यह मानव को आत्म केंद्रित नहीं बल्कि लोक कल्याण और वैश्विक सद्भाव के लिए प्रेरित करता है। इसी कारण वैदिक दर्शन आज भी भविष्य में भी मानवता के लिए मार्गदर्शक बना रहेगा। धन्यवाद सर। इसमें आपका जो टॉपिक है एआई का यूज कैसे करेंगे, ये आपने इसमें कुछ यूज बताया नहीं पेपर में। इसमें कुछ आना चाहिए था। हेलो, आवाज जा रही है मेरी? हेलो आवाज जा सर, रही है? फंस के आ रही है, कॉलेज में थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। हेलो, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू। लता भगत जी अपने को अनम्यूट करें। इसके बाद चारू मिश्रा जी तैयार रहेंगी। डॉक्टर चारू मिश्रा। लता भगत, दुर्गेश लता भगत जी। मैं डॉक्टर चारू मिश्रा सर। जी मैं मैम। सर दुर्गेश दुर्गेश लता, ठीक है, बंद कर कौन दो। बोलेगा सर? आप सर आप बताएं। दुर्गेश लता भगत पहले प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद चारू मिश्रा जी कौन बोलेगा सर? मैम लता भगत जी जुड़ गई हैं, इसके बाद आप। ओके ओके सर। नमस्कार सर सभी लोगों को। सर एक मिनट। सर ये एक मिनट। एक प्रॉब्लम है, तब तक हम लोग चारू मिश्रा जी को लेते हैं, फिर आप फिर से रिकनेक्ट होइएगा। जी 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 सर। जी सर। चारू मिश्रा जी। जी सर, धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर चारू मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर। वैसे तो एसोसिएट हूँ पर असिस्टेंट ही लिख रही हूँ अभी। मेरे टॉपिक का विषय है विकसित भारत 2047 एवं संस्कृत भाषा की भूमिका। इस शोध पत्र में विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में संस्कृत भाषा की महत्वपूर्ण और बहुआयामी भूमिका का विश्लेषण किया गया है मेरे द्वारा। संस्कृत केवल प्राचीन भाषा ही नहीं है बल्कि भारतीय ज्ञान प्रणाली, वैज्ञानिक सोच, राष्ट्रीय एकता एवं नैतिक मूल्यों का अक्षय स्रोत है। यह शोध पत्र नई शिक्षा नीति, तकनीकी नवाचार, स्वास्थ्य जिसमें योग एवं आयुर्वेद और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्षेत्रों में संस्कृत भाषा के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान का मूल्यांकन करता है। निष्कर्ष में यह स्थापित किया गया है कि संस्कृत को केवल धार्मिक या सांस्कृतिक भाषा के रूप में न देखा जाए
अपितु इसे ज्ञान, अनुसंधान और विकास की भाषा के रूप में देखने और भारत को जगत गुरु बनाने तथा विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के रूप में देखा जाए। शुरुआती पेपर के शुरुआत में मैंने विकसित भारत के व्यापक रूप को दिखाया है, तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको सभी लोग जानते हैं सर। और यहाँ पर मैंने संस्कृत का आधारभूत महत्व लिया है, जिसमें मैंने दिखाया है कि विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, वैदिक और लौकिक। वैदिक संस्कृत में नूतन संस्कार को मान्यता नहीं दी जाती है, वह सदैव एक जैसी ही रहती है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। लौकिक संस्कृत मनुष्यों के बोलचाल की भाषा है, इसमें समय समय पर आवश्यक संस्कार एवं परिष्कार होते रहते हैं। इसमें वेदों के पुरातन ज्ञान विज्ञान की अवधारणा के साथ जगत के नवीन ज्ञान विज्ञान का समावेश भी रहता है, इसी कारण इसे लौकिक भाषा कहा जाता है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं इतिहास के सम्यक ज्ञान के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन परम आवश्यक है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे कालजयी ग्रंथ इसी भाषा में हैं। इसका सुस्पष्ट व्याकरण, महर्षि पाणिनिकृत अष्टाध्यायी और वर्णमाला की वैज्ञानिकता इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषाओं में स्थान दिलाती है। यह भाषा न केवल धार्मिक ग्रंथों की कुंजी है, अपितु भारतीय ज्ञान परंपरा, दर्शन, विज्ञान, गणित और चिकित्सा का अच्छा स्रोत भी है। संस्कृत वाङ्मय में निहित नैतिक और सदाचारी विचार मनुष्य को मानवता सिखाने की क्षमता रखते हैं, जो आधुनिक समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। संगीत, नृत्य जैसे भरतनाट्यम का आधार नाट्यशास्त्र और वास्तुकला से संबंधित ग्रंथ भी इसी भाषा में हैं। भारत के सभी प्रमुख दार्शनिक मत जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत संस्कृत ग्रंथों में निहित हैं। मैंने यहाँ पर संस्कृत की शाखाओं को बताया है, जिसमें सौंदर्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, कानून और प्रशासन, खगोल विज्ञान, योग, आयुर्वेद, दर्शन और नैतिकता ये हैं। यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। संस्कृत भाषा को जो प्रमुख समस्याएं आ रही हैं, वहां हमने उनको लिया है। सबसे बड़ी प्रमुख समस्या मैंने दिखाई है आधुनिक शिक्षा और अनुसंधान में संस्कृत के ज्ञान भंडार की उपेक्षा। आधुनिक शिक्षा और अनुसंधान में संस्कृत के विशाल ज्ञान भंडार की उपेक्षा चिंता का विषय है, जिसे कई विद्वानों ने और शिक्षाविदों ने उजागर किया है। यह उपेक्षा सिर्फ एक भाषा की ही नहीं है, बल्कि भारतीय दर्शन, संस्कृत, इतिहास और ज्ञान परंपरा की उपेक्षा मानी जाती है। इस उपेक्षा के कारण जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रभाव हो रहा है, उसमें भी उपेक्षा है और हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति अनदेखी कर रहे हैं। मृत भाषा की अवधारणा भी संस्कृत भाषा को आगे बढ़ने में एक कठिनाई दे रही है। संस्कृत से कठिन और मृत भाषा समझा जाना भी इसकी उपयोगिता को कम करता है, जबकि यह वैज्ञानिक संपन्न भाषा है। अंतर विषयक अनुप्रयोगों की अनदेखी। संस्कृत का ज्ञान कई आधुनिक विषयों जैसे एआई, भाषा विज्ञान और चिकित्सा के लिए भी उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसके पहलुओं पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। विकसित राष्ट्र बनने की दौड़ में भारतीय जड़ों और नैतिक मूल्यों से अलगाव का खतरा है, ऐसा माना जा रहा है। आज पश्चिमी सभ्यता में गहरी त्रासदी ये देखी जा सकती है कि मनुष्य के अस्तित्व को ही प्रश्नांकित किया जा रहा है। आधुनिकता और विकास के तर्क की सीमाएं देखी जा रही हैं। विकासवाद वाली आधुनिकता को विकास का चरम माना, भ्रामक और प्रगति भी एक मिथक लगने लगा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का एक संतुलन होना चाहिए, तभी लोक संग्रह या जन कल्याण का लक्ष्य पाया जा सकेगा। विकसित देशों में जहां मानव विकास सूचकांक बहुत ऊंचा है, वहां उत्पादन और उपयोग का स्तर भी स्वाभाविक रूप से उतना ही ऊंचा है। दुनिया पर एक छत्र अधिकार जमाने की अवधारणा के चलते धरती को खंगालना, मानवता का मानकीकरण, हिंसा, युद्ध और सामाजिक अन्याय और आर्थिक असमानता मूलतः निरपेक्ष पश्चिमी विचारों की देन है। ऐसे में विस्तृत होती संस्कृत ज्ञान की समृद्ध परंपरा को रचनात्मकता और सुधार के साथ पुनर्जीवित और स्थापित करना एक मानवीय आवश्यकता है। इसके लिए विकसित राष्ट्रों को खुले मन से संस्कृत ज्ञान परंपरा के संरक्षण, अनुकूलन और अनुप्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। संस्कृत के माध्यम से हम हजारों वर्ष पुरानी अपनी परंपरा को ले सकते हैं, जिसमें आयुर्वेद है और आपका गणित है, आर्यभट्टीय सिद्धांत इनकी प्रमुख रचना है, खगोल विज्ञान में सूर्य सिद्धांत है, पंच सिद्धांत का है,
निष्कर्ष की तरफ। जी सर, ओके ओके ओके। अरे जी सर, 2 काम हो गए। क्या 2 काम हो गए? प्रेजेंटेशन। हाँ सर, हो गए। संस्कृत को विकास की मुख्य धारा में लाकर भारत न केवल अपनी बौद्धिक संप्रभुता को पुनः प्राप्त करेगा, बल्कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कल्याण के क्षेत्र में एक अद्वितीय आदर्श स्थापित करते हुए विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका को भी साकार करेगा। विकसित भारत का सपना सही मायने में संस्कृत की ज्ञान शक्ति को पहचानने और उपयोग करने के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सारगर्भित प्रस्तुति। धन्यवाद सर। कोई क्वेश्चन किसी का, किसी भी प्रतिभागी का? कोई मैडम से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, चारू मैम से। ठीक है, ओके मैडम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नवनीत चंद्रा जी रेडी हैं? जी सर, रेडी है सर। ओके सर, ठीक है, ओके, शुरू करिए। Sir, is my screen is visible? Visual. Okay, sir. Sir, myself Navneet Chandra, and I am the research scholar from the School of Management Studies, Indira Gandhi National Open University. And my title is AI-enabled online reviews and consumer decision making in the hotel bookings Insight for Viksit Bharat 2027. Yes, sir. In the present era, people read like online reviews before booking a hotel, and these reviews rating play a crucial role in shaping consumers' perception and influencing their booking decisions. And this study conceptually examines AI role in shaping decisions, also highlights relevance to India's Viksit Bharat 2047 vision. So these are the literature reviews, sir. So this is divided into the 2 parts: influence of online reviews and AI authenticity and credibility. So the online review shape trust, booking intentions. Review helpfulness depends on clarity, relevance, and diagnosticity. And review volume increases confidence through social proof. Positive review significantly boost booking intention, moderated by brand image and star category. And AI authenticity and credibility are like AI and robotics support smarter information processing in tourism. Fake reviews remain a major issue, and network analysis detects large-scale fraud. Advanced AI models improve fake review detection and platform reliability, and so on the service quality and employee ethics indirectly shape review patterns. So these are the research gaps are divided into 2 parts: gaps in understanding AI-enabled review environments and gaps related to India and theoretical. So the very little research on AI-enabled review in the Indian hospitality context, despite rising the digital adoption, and no integrated framework linking AI to cognitive processing, to trust, to booking decisions. So the ethical issues such as AI transparency, fairness, and bias not addressed addressed in the existing review research. So the employee ethics and organizational context affect service perception but not linked to AI curated reviews. So the research objectives are to examine influence of online reviews on hotel decisions, to analyze AI role in enhancing review credibility, to identify implications for Viksit Bharat 2047, to outline future research opportunities, and the methodology are the conceptual research design based on secondary literature and uses theories such as information processing, heuristics, digital trust, and analytical synthesis of past studies. So the discussion is, sir, the role of online review features is star rating leads to quick heuristic judgments, and narrative leads to diagnostic experience-based insights. Visual leads to like increase authenticity and confidence. Review volume leads to social proof and reliability. Reviewer profile leads to enhances credibility and perception about the who writes the reviews. And the role of AI in reviews is sentiment analysis highlights key emotions like AI shows the feature of sentiment analysis, theme extraction, fake review detection, and AI generated summaries nowadays shows on the booking platform websites. So the AI generated summaries reduce cognitive load and personalized ranking improves relevance.
This is the conceptual flow of influence. Online review environment leads to exposure to key cues like rating, narratives, images, and AI summaries, which leads to again cognitive and heuristic processing, like how we evaluate those reviews, shortcuts, and comparison with the other hotels and the other booking websites, which leads to trust formation. Our trust forms how credible are the reviews, how authentic are the reviews, are the platforms really are the booking platforms are reliable or not, and this leads to perceived value and a reduced risk, and finally this leads to booking intention and final choice. So this is the AI process flow, sir. Raw user generated content which we wrote on the booking platform after how we feel about online reviews, and this leads to AI process. AI process is mainly divided into the 4 parts like sentiment analysis, theme extraction, fake review detection, and summary generation. And this leads to enhanced review environment like clearer information, greater credibility, lower cognitive load, and this leads to consumer decision making. So these are the stakeholders like consumers, hotels, online travel agency, that is platforms, and policymakers. So my analytical insight summary is AI improves transparency in review systems. Heuristics plus artificial intelligence leads to faster decisions, and trust formation is stronger with structured review. AI supports India's tourism digitalization, and conclusion is AI reshapes interpretation of online reviews, enhances like clarity, reduces overload, build trust, strengthen the digital hospitality ecosystem, and aligns with the goal of Viksit Bharat 2047. So the limitations of this paper is that this is the conceptual paper. No empirical validation has been taken out, and platform differences are not examined. Ethical issues not deeply analyzed, and rapidly like evolving AI landscape may shift outcomes. And future research direction may be experiments on AI generated summaries, and demographic effects may also be considered, and cross-platform comparison of AI tools may be considered, studies on AI fairness and transparency may be considered, and exploration of multimodal reviews like text, image, video may be combinedly have been taken. So this is from my side, sir. Thank you, sir. Your paper is good. Any question? Any participants? Your paper is excellent, and I think you have presented it very nicely. So the idea of AI is very getting very prominent place in the society. How Yes, the sense of consumers, the emotions of consumers are going to correlated with the AI tools. So do you have any suggestion how this the sense of emotionality, the sense of emotions of the consumers can be handled with AI tools? Sir, like nowadays AI tools are what doing, they like summarize all the reviews on a booking platform, and they write a very balanced summary like above the review websites. So the artificial intelligence is balancing the positivity and negativity, and writing the factual things like only like ignoring the fully positivity and fully negativity, and making it a balanced combination, sir. Good, nice, excellent. So thank you so much. Yes, Next. thank you, sir. लता भगत. दुर्गेश लता भगत जी रेडी हैं? जी सर. हाँ जी. नमस्कार सर. राजकीय महिला महाविद्यालय एकेडमिक सोसाइटी की तरफ से ऑर्गेनाइज इस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं आप सभी का सादर धन्यवाद करती हूँ, और मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे को आपने पेपर प्रेजेंट करने की परमिशन दी. मैं दुर्गेश लता भगत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज इटावा. सर, मेरे पेपर का टॉपिक है कृत्रिम बौद्धता एवं बौद्धिक चिंतन. सर, प्रेजेंट करूं? वर्तमान युग ज्ञान विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहा गया है. मानव ने अपनी बौद्धिक क्षमता, तर्कशक्ति एवं सृजनशीलता के बल पर यह कर दिखाया है जो कभी केवल कल्पना मात्र था.
इन्हीं वैज्ञानिकों की एक उपलब्धि है जिसे हम कृत्रिम बौद्धिकता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं। आज का यह विषय केवल विज्ञान का नहीं अपितु दर्शन, नैतिकता, समाजशास्त्र तथा नीति निर्माण का भी केंद्र बन चुका है। कृत्रिम बौद्धिकता का उद्देश्य मशीनों को मानव के समान सोचने, सीखने एवं निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। जबकि बौद्धिक चिंतन मानव की वह विशेषता है जो उसे अन्य प्राणियों से बौद्धिक चिंतन के आधार पर अलग करता है। कृत्रिम बौद्धिकता की परिभाषा एवं स्वरूप। कृत्रिम बौद्धिकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऐसी शाखा है जो मानव बुद्धि की कार्यप्रणाली की नकल करती है। वह कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मशीन से अनुभव सीखते हैं, तर्क करते हैं, समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। कृत्रिम बौद्धिकता विज्ञान वह विज्ञान है जिसके माध्यम से मशीन ऐसी कार्य क्षमता प्राप्त करती है जो मानव सामान्य बुद्धि से संपन्न होता है। उदाहरण के लिए चेहरा पहचानना, स्वचालित वाहन, चैट बॉक्स, भाषाई अनुवाद, स्वास्थ्य निदान तंत्र। कृत्रिम बौद्धिकता की प्रमुख शाखाएं हैं। कृत्रिम बौद्धिकता बहुआयामी क्षेत्र है और इसकी निम्नलिखित शाखाएं हैं। नंबर 1 है मशीन लर्निंग। यह वह तकनीक है जिसमें कंप्यूटर डाटा से सीखता है। उदाहरण के लिए गूगल सर्च इंजन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब आदि। फिर है दूसरा है डीप लर्निंग। यह कृत्रिम तंत्र नेटवर्क पर आधारित है। यह मानव मस्तिष्क की तंत्रिकाओं की कार्यप्रणाली का अनुकरण करती है। अगला है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यह तकनीक मशीन को मानव भाषा को सीखने और उसे उस पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करती है, जैसे चैट जीपीटी, श्री, एलेक्सा। फिर रोबोटिक, यह यंत्रों का निर्माण है जो भौतिक कार्यप्रणाली को करने में सक्षम हो, जैसे स्वचालित रोबोट, औद्योगिक मशीनें, रोबोटिक सर्जरी। नेक्स्ट है बौद्धिक चिंतन का अर्थ तथा दार्शनिक आधार। बौद्धिक चिंतन से तात्पर्य है ज्ञान, तर्क, विवेक, अनुभव और मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर सोचने की प्रक्रिया। यह मानव मस्तिष्क की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह निर्णय लेता है, सृजन करता है और नैतिक विवेक का प्रयोग करता है। दार्शनिक रूप से बौद्धिक चिंतन निम्न तत्वों पर आधारित होता है: ज्ञान, तर्क, विवेक। कृत्रिम बौद्धिकता एवं बौद्धिक चिंतन का तुलनात्मक अध्ययन। आधार मानव बौद्धिक चिंतन, इसमें कृत्रिम बौद्धिकता। फिर दूसरा है आधार तत्व, इसमें है चेतना, अनुभव, भावना, डेटा। फिर है निर्णय प्रक्रिया मूल्य आधारित, परिणाम पर आधारित। इसमें त्रुटि की संभावना, भावनाओं से प्रभावित, गणनात्मक रूप से सटीक, सृजनशीलता एवं मौलिक सीमित। नैतिक, फिर अगला है नैतिक विवेक उपस्थिति और अनुपस्थिति को दिखाता है। इसके बाद है विकास के स्रोत। इसमें आत्मचिंतन, मानव द्वारा निर्मित कोड, स्पष्ट। कृत्रिम बौद्धिकता बुद्धि का अनुकरण है, जबकि मानव बौद्धिकता बुद्धि का अनुभव है। कृत्रिम बौद्धिकता के प्रमुख उपयोग एवं बौद्धिक योगदान। पहला है शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में, तीसरा है प्रशासनिक क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन में, नैतिक दर्शन के प्रश्नों के संबंध में। सर मैं आखिरी उसी में आ रही हूँ, कृत्रिम बौद्धिकता की सीमाएं।
इसमें है नैतिक विवेक का अभाव होता है, भावनात्मक शून्यता होती है, निर्भरता का संकट होता है, रोजगार में असंतुलन पैदा होता है। फिर मैं लास्ट में कंक्लूजन पे आ जाऊं सर? आइए कंक्लूड करिए। हाँ सर। कृत्रिम बौद्धिकता मानव की बौद्धिक चिंता शक्ति का परिणाम है, ना कि उसकी प्रतिस्थापना का। यह मानव के विवेक, सृजनशीलता और ज्ञान का विस्तार है जो उसे अधिक सक्षम बनाता है, परंतु इसका उपयोग तभी हितकारी होता है जब वह मानव कल्याण के लिए प्रेरित हो। कृत्रिम बौद्धिकता मानव के बौद्धिक चिंतन का प्रतिरूप है, परंतु उसमें चेतना, नैतिकता तभी संभव है जब मानव स्वयं उसका दर्शक बने। धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम। इस पेपर को प्रेजेंट करने में जो रेफरेंसेज आपने यूज किया उसको थोड़ा हमें बता दीजिए, क्या क्या यूज किया आपने, 2-4। सर मैंने इसमें यूज किया है, एक तो भगवत गीता का कुछ श्लोक इसमें डाले थे जो मैंने बताए नहीं, ठीक है सर। और इसके बाद मैंने पाणिनि के अष्टाध्यायी का भी इसमें उपयोग किया है, और दूसरा मैंने सर नेट का उपयोग किया है, जो इंटरनेट पे मटेरियल अवेलेबल है सर। ओके, किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न हो मैडम से पूछ सकता है। थैंक यू मैडम। ब्रजनाथ पांडे जी तैयार हैं आप? यस ओके सर। जी कंटिन्यू, बताएं, अपना परिचय दे दीजिएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल रेस्पेक्टेड डीएम एंड रेस्पेक्टेड organizing committee, and thanks for giving such opportunity me in this occasion. My topic is integrating AI with indigenous knowledge for sustainable development. Indigenous knowledge system, including traditional knowledge, local agricultural practices, and cultural resources management, constitute invaluable place-based wisdom for sustainable development. AI offers powerful tools, number of power tools for pattern detection, prediction modeling, and environmental problems, food security, and community resilience. However, integration must respect indigenous data, Severting concluding there are numerous problems faced by farmers. In conclude, integrating AI with indigenous knowledge, sustainable development hold transformative promise, improved environmental monitoring, resilient agriculture practice, and preservation of land and cultural heritage. Yet the promise can only be realized if projects center indigenous governance, consent, and benefit sharing carefully designed participatory AI system grounded in data, so local validity and capacity building can amplify indigenous steward and contribute meaningful to the sustainable development goal. Thank you. Thank you so much. हो जाता है अरुण जी। ब्रजनाथ पांडे ये तो बोल रहे थे। हाँ यस सर। जी ब्रजनाथ पांडे जी कहने नहीं अच्छा, अरुण। हाँ, you can continue. Arun ji, यस सर यस सर। you can present your paper. ओके थैंक यू सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सर मेरा रिसर्च पेपर का टॉपिक है विकसित भारत में महिलाओं का नेतृत्व और डिजिटल भागीदारी,
एक समीक्षात्मक अध्ययन। सर इसमें मेरा नाम अरुण यादव है, मैं शोध छात्र अर्थशास्त्र विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र हूँ सर। वीडियो ऑन कर ले अरुण जी। अच्छा सर। सर सर शुरू करें? जी जी सर मेरा रिसर्च पेपर है विकसित भारत में महिलाओं का नेतृत्व और डिजिटल भागीदारी, एक समीक्षात्मक अध्ययन है, जिसमें सारांश के रूप में मैंने बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित भारत नवनिर्माण में महिलाओं का अहम योगदान है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने जो बजट 2025-26 है उसमें मुख्य धारा में महिलाओं को भी लिया गया है, और 2014 के पश्चात से ही जो वर्तमान सरकार है महिलाओं पर ज़्यादा जोर दे रही है सशक्तिकरण के लिए, और महिलाओं को सशक्त कर रही है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जैसे जनधन योजना है, स्टार्टअप है, और मुद्रा योजना है, स्टैंड अप इंडिया योजना है। इसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। सर विभिन्न सर्वेक्षणों का अध्ययन करते हुए मैंने पाया कि जो महिलाओं का जमीनी स्तर है अभी भी कहीं ना कहीं महिलाएं पूर्ण रूप से सशक्त नहीं हो पाई हैं, और मेरा अध्ययन का उद्देश्य है सर महिलाओं के योगदान का समीक्षात्मक अध्ययन करना, ये बताना कि किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके और सशक्त किया जा सके। शोध प्रविधि में सर ये एक डिस्क्रिप्टिव नेचर का मेरा रिसर्च पेपर है, और मैंने अपने अध्ययन में ये पाया है कि महिलाएं डिजिटल रूप में भागीदारी हो पाई हैं, और सबसे ज़्यादा जो 70% महिलाएं जो हैं मुद्रा योजना में लाभान्वित हैं, जो 34.96 करोड़ महिला कुल आंकड़ों में 51.6 लाख की संख्या में सबसे ज़्यादा महिलाएं ही हैं। और वहीं बात करें स्टैंड अप इंडिया की तो 2,15,582 कुल महिलाएं लाभार्थी हैं सर। इनोवेशन और रिसर्च में भी सरकार ने बहुत अच्छे से योगदान दिया है, जिससे हमें यह पता चलता है जेंडर बजट से। जेंडर बजट में लगातार 5 वर्ष में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 2025-26 में 4.49 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो कि 2021-22 में 1.53 लाख करोड़ का आवंटन किया गया था। वही बात करें स्टेम की क्षेत्रों में तो महिलाएं जो है काफ़ी आगे बढ़ी हैं, जिसमें से लगभग 77% महिलाएं जो हैं 2024-25 में अपने आप को सशक्त बना रही हैं। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भागीदारी भी महिलाओं की अग्रणी रूप ले रहा है। अपने कंक्लूजन में सर मैं आता हूं तो बताता हूं कि शिक्षा और कौशल उनके निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है। राजनीतिक भागीदारी और डिजिटल साक्षरता महिलाओं को सशक्त बना रहा है। वर्ष 2047 तक टिकाऊ विकास अर्थात विकसित भारत बनने के लिए महिलाओं को सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी नीतियां प्रगति को गति दे रही हैं, परंतु स्टेम जैसे क्षेत्रों में अहम भागीदारी के बावजूद भी महिलाएं अपने समकक्ष पुरुषों से बहुत पीछे हैं, चाहे वो आय हो, चाहे वो फ्रीडम हो। और इसको देखते हुए डिजिटल रूप में भी महिलाएं का भागीदारी बढ़ा है और वह आत्मनिर्भर बन रही हैं, परंतु महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए अधिक से अधिक खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जोर देना चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद अरुण जी।
जी सर। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अरुण जी से? जी जी सर। अरुण जी, मेरा जी मैम। प्रश्न है, हाँ, ये प्रश्न है कि जैसे आपने दोनों तरह की बातें की कि महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है और दूसरी तरफ आपने कहा जमीनी पहलू पर ये चीज नहीं संभव है, तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि आप कैसे ही कर सकते हैं? आप महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या करेंगे? मैम महिलाओं के लिए सबसे पहले तो मैम डिजिटली रूप से महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाहिए। और जो स्टार्टअप, ये जो मुद्रा योजना है और स्टैंड अप इंडिया योजना है मैम, इसको भी डिजिटली रूप से जोड़ना चाहिए ताकि अधिक से अधिक महिलाओं में इसको पहुंचाया जा सके। क्योंकि मैम बहुत से ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो पता चलता है महिलाओं को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि इसका कैसे लाभ उठाया जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई पेपर प्रेजेंट करना चाहता हो? कोई भी पार्टिसिपेंट अपना हाथ इरेज करें। जी बताएं। जी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं अगर वो अपना पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हैंड रेज करें, जिससे हम उन्हें अनाउंस कर दें उनका नाम। से बुलाते हैं। एक कुमार मिश्रा, अजय कुमार राय, अजय बहादुर, नमस्कार सर, मेरी आवाज जा रही है? नमस्कार सर। नमस्कार। आवाज आ रही है मैडम? आवाज आ रही है। हाँ, सादर प्रणाम। की नोटिस स्पीकर। यस, हाँ, शी इज। मेरे शोध पत्र का सर विषय है विकसित भारत @ 2047, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अपूर्ण सूचना का अर्थशास्त्र, विजन, मिशन और कर ले तो अच्छा रहेगा। जी। हेलो। Yes, ma'am. Welcome to this session. She is Solim Ghosh, and Yeah, sir. yeah. She is assistant professor. I would like to make everyone to know about this keynote speaker of this session, and she is Solim Ghosh, Dr. Solim Ghosh, and she is the assistant professor in the Department of Economics, Government Degree College, Jakhni, Varanasi. So we would like to welcome to you to this technical session, and very highly interested to hear from you. Just continue your talk. Thank you so much, sir, for your kind words on मेरे मेरे लिए इतने अच्छे शब्दों का सर आपने इस्तेमाल किया। हृदय तल से आपका बहुत बहुत आभार। माँ भारती को सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ मैं माननीय उच्च शिक्षा निदेशक महोदय, जो इस द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संरक्षक हैं, और
आभासी मंडल के संयोजक तो और आयोजक तो सभी जितने भी हमारे विशिष्ट लोग हैं सभी को प्रणाम। और इस आभासी वेब संगोष्ठी में जितने भी विद्वत मित्र हैं सभी का भी पंक्तिबद्ध जिसको प्रणाम करते हुए मैं अपने विषय से संबंधित दो चार चीजों का उल्लेख सिर्फ करना चाहूंगी। कि विषय तो हालांकि मेरे शोध पत्र का है कि विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अपूर्ण सूचना का अर्थशास्त्र, विजन, मिशन और उपसंहार। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बातों को रखूं, मैं अब्दुल कलाम जी के विजन को याद कराना चाहूंगी कि सपने वो नहीं जो सोए हुए अवस्था में आ जाएं, वरन सपने तो वो होते हैं जिन्हें पूरे किए बिना नींद ना आए। जी हाँ, जितने भी हमारे आभासी वेब संगोष्ठी से जुड़े मित्रगण हैं इस बात को जाने कि हमारा जो भारत है ये प्राचीन और तमाम जो इसके विशेष और विशेषणों से ये विभूषित रहा है। और वो इसलिए रहा है, इसके जो प्रबोधन, इसके जो प्रशिक्षण, इसके जो अनुसंधान और इसके जो विविध आयाम थे वो इतने गहन चिंतन मनन और दर्शन से युक्त थे कि जिनकी परिकल्पना को तो हमने अभी विकसित भारत बनने की होड़ में हम चाहते हैं कि ये त्यागा ना जाए, इसको इस तरह से मतलब जोड़ा जाए कि हम अपनी संस्कृति को, जो हमारी संस्कृति जो एकात्म शब्द चीज को लेते हुए हम आगे बढ़े। और चिंता इस शिक्षण पद्धति को जो समावेशित किया उस समावेशीकरण को हम कहीं भूल भूल गए हैं, जहाँ प्राथमिक शिक्षा से लेके उच्च शिक्षण तक अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन और संगठन की बात की जाती थी। जो ऐसे तत्व थे जो सामाजिक सेवा, उसकी उत्कृष्टता को समर्पित होते थे। युग सहस्त्र पर योजन पर भानु लिलियो ताहि मधुर फल जानू, इसमें जो युग सहस्त्र योजन और भानु शब्द का जो शोध किया गया था, जो प्रबोधन किया गया था, जो प्रकाशन किया गया था, वो इतना महत्वपूर्ण था कि जिसकी परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते कि युग अर्थात 12,000 वर्ष से इसका आशय था, सहस्त्र अर्थात 1,000 वर्ष से इसका आशय था, योजन अर्थात 8 मील की व्याख्या हम करते थे, और भानु अर्थात सूर्य। और अर्थ यह था कि हनुमान जी ने इतने विशाल दूरी पर स्थित सूर्य को एक मीठे फल के समान निगल लिया था, जो उसकी असाधारण शक्ति और वेग को दर्शाता था। अर्थात यह शोध और प्रबोधन का वह युग था जहां हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की सटीक गणना करते थे। और में शोध, प्रबोधन, प्रकाशन, प्रशिक्षण, अनुसंधान का ऐसा स्वरूप रहा जो विकसित भारत की संकल्पना को, जो विजन है, उसको कहीं धूमिल करते नजर आ रहे हैं। अगर हम याद करें तो भारत के विकसित भारत के स्वप्न को, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वप्न को सभी कहते हैं कि बड़ा ये महत्वाकांक्षी स्वप्न है। ये नीति आयोग का विजन भी जो 2047 है, जिसको कि हम कह सकते हैं, इसे भी कहा जाता है। परंतु यह नीति जो विजन है, ये महत्वाकांक्षा, ये महत्वाकांक्षी इस अर्थ में है कि यह मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही रूपों में युवाओं को, गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को, सभी की समीकृत नीतियों को तार्किक और एकीकृत रूप में अपने अपने साथ प्रभावपूर्ण मांग के रूप में रखना चाहता है। इस विकसित भारत की संकल्पना को और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की धारणा को अगर हम समीकृत रूप से, एकीकृत रूप से एक साथ परिप्रेक्ष्य में देखें, तो किसी भी चीज को यदि समर्पण भाव से स्वीकारा जाए तो वह संकल्पित होता है, वह फलित होता है। और यदि हम उसकी सिर्फ कमजोरियों को और उसके सिर्फ ड्रॉबैक्स को हम याद करेंगे तो वो चीजें ना तो फलित होती हैं, ना ही राष्ट्र के लिए वो आगे बढ़ती हैं। इसी संबंध में अगर याद किया जाए या देखा जाए तो कई चीजें हैं विकसित भारत के, कई रूप हैं जिसमें शासन और अर्थव्यवस्था। हेलो, मेरी आवाज जा रही है?
You're audible. You can continue. हाँ, जिसमें विकसित भारत के कई प्रमुख स्तंभ हैं, जिसमें से एक है शासन और अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें साहसिक सुधारों की श्रृंखला शामिल हो, कृषि अर्थात कृषि क्रांति, पीएम किसान और पीएम फसल बीमा अर्थात, और उसमें साथ ही साथ वह पक्ष है कि जिसमें से हम बुद्धिमत्ता को अपने ही देश में, अपने ही राष्ट्र में प्रतिभा को रखना चाहते हैं और प्रतिभा पलायन को रोकना चाहते हैं, भारत को प्रतिभा आकर्षक केंद्र बनाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो हमेशा कहा जाता था कि इसने फ्रॉग जंप किया, इसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, विनिर्माण सेक्टर को छोड़ के एग्रीकल्चर से, फ्लाइंग मोड से ये सेवा क्षेत्र में उतर आया, जिससे कि हम कहीं पिछड़ गए। और सरकार ने इसी चीज को ध्यान रखते हुए एक मुख्य क्षेत्र इसका विनिर्माण बनाया है, जिसमें से कि जीनोमिक्स, बायो मैन्युफैक्चरिंग और जैव अर्थव्यवस्था से यानी बायो इकोनॉमी में वैश्विक नवाचार जैसे तत्व शामिल हैं। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इतना रोल है कि एक सेक्टर को अगर देखा जाए और हम उस सेक्टर को फलित करना चाहते हैं, और जीडीपी के अगर विभिन्न आंकड़ों को देखा जाए तो कृषि में भी हमने उल्लेखनीय सुधार किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके उसके टूल्स को, उसके टेक्निक्स को हमने जाना है। इवन कि एक किसान जो असंगठित क्षेत्र से आता है, जो बहुत कम पढ़ा लिखा होता है, उसने भी उस पद्धति को अपनाया है, उसके टूल्स को अपनाया है, उसके टेक्निक्स को। मैं एक ग्रामीण महाविद्यालय में कार्यरत हूँ और वहाँ उसके अगल बगल कई हरित क्षेत्र हैं जहाँ की किसान जानना चाहते हैं कि व्हाट इज एआई। उनसे पूछिए कभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होता है, तो वो आपको इतने सहज और सुलभ तरीके से बता देते हैं कि जो आप अच्छे अच्छे ग्राफिक्स से और अच्छे अच्छे टूल्स और टेक्निक से आप नहीं बता सकते। यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूंगी, वो तो बाद में मैं करूंगी। पहले ये बताऊं कि भारत के आत्मा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता था। अगर हम रामायणा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो हम हमेशा रामायण के उस घटना को हमेशा सुनते आए हैं कि सोने की हिरन, मृग मरीचिका, हाँ, मारीच की कथा, राक्षस था मारीच और उसने इस तरह से हरण किया सीता जी का। हाँ, और लेकिन हम कभी ये नहीं देख पाते कि वो जो तरीका था राक्षस मारीच का, वो जस्ट लाइक सिमिलर टू प्रेजेंट एआई कंसेप्ट। हाँ, उसने वो सोने की मृग मरीचिका का एक निर्माण किया और सोने की मृग मरीचिका के द्वारा उसने उसको ब्राह्मण, जिसके प्रलोभन में हर चीजें आ गई। लेकिन इसने एक चीज बताई कि हर सुंदर चीज जो आकर्षक होती है, जो सुंदर होती है, आवश्यक नहीं कि वह सत्य हो। और हम फिर राम और लक्ष्मण के नीर क्षीर विवेक की निष्कर्ष को अगर देखें कि उन्होंने, लक्ष्मण के संदेह ने जो विवेक को दर्शाती है और राम का गहन जांच जो राम के गहन जांच की प्रक्रिया को दर्शाता है। और इन दो के सुमेलन से यदि हम गहन जांच प्लस विवेक दोनों का यदि प्रयोग करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जो हम एक ड्रॉबैक्स बताते हैं, जो एक नेगेटिव एक्सपेक्ट्स को बताते हैं कि भ्रम और वास्तविकता का संचार करता है, डिजिटल छलावा को बढ़ाता है, या इसमें जागरूकता की आवश्यकता है। तो जागरूकता की किस तरह की आवश्यकता है? जागरूकता की आपकी नीर विवेकी निष्कर्षों की आवश्यकता है। विकसित भारत के नागरिक हैं, आप 2047 तक अपने आप को आगे लाने चाहते हैं, सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है। महिलाओं को इतना ऊपर दर्जा दिया गया, आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, हर क्षेत्र में किसान अपने दम पर आगे बढ़ना चाह रहा है, एक्सपोर्ट को हमने बढ़ाया है, कई क्षेत्रों में हम ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार इसी तरह से अगर महाभारत और उसके मेटाफोरिकल रिलेशनशिप को अगर एआई से जोड़ा जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाए, तो एक बड़ा सा एक कथन है कि अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरा हुआ, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया, चाहे वो मनुष्य हो या वो हाथी। यह एक छल था जिसका उपयोग युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को भ्रमित करने के लिए किया था, जिससे द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और उसकी मृत्यु हो गई। परंतु यह घटना एआई के उस एस्पेक्ट को बताता है कि सत्य और झूठ के बीच की रेखा
सूचना के हेरफेर और उस पर निर्भरता को दर्शाती है, जिससे विश्वास टूटता है। परंतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भ्रमजाल सत्य और झूठे के बीच की रेखा, जिससे सूचना से हेरफेर हो, उसमें निर्भरता हो, अपूर्ण सूचना का संचार हो, और ये उससे हटके यदि हम उसी चीज को इस तरह से देखें कि यहीं पर हमारा विवेक और जो गहन जांच की जो प्रक्रिया है वो भी पुष्ट होती है। हम उस तथ्य का निराकरण करते हैं, हम उस तथ्य की खोज में आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रबोधन होता है, हमारा प्रशिक्षण होता है, और उस तथ्य का फिर प्रकाशन भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ रिसर्च क्वेश्चंस भी फलित होते हैं कि क्या जो हम या अस्तित्व को हमारी सीमित जो मानवीय समझ है क्या पूरी तरह से समझ सकती है। दूसरा एक रिसर्च क्वेश्चन है कि क्या ऐसा कुछ है जो सिद्धांत से परे है, जो हमारी पहुंच से परे है, जैसे अश्वत्थामा, जिनके बारे में आज भी हिस्टोरिकल एविडेंसेस, नॉट ओनली एविडेंसेस बट आल्सो आप कह सकते प्रूव्ड एविडेंसेस शोज दैट कि ये जो अश्वत्थामा का कहानी, वो अश्वत्थामा आज भी जीवंत अवस्था में मौजूद है। तीसरा रिसर्च क्वेश्चन है कि क्या एआई में ऐसी चेतना विकसित हो सकती है जिसे हम समझ सके। तो इसके लिए हमें आगे आना होगा, हमें उस भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाना होगा जिससे हम धी शब्द को ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसमें जो धी शब्द है ये इतना महत्वपूर्ण है कि यह विविध पक्षों को दर्शाता है। यह जो अनुसंधान का प्रक्रिया था, यह धी शब्द ज्ञानार्जन और समझ को बताता है। यह धी शब्द अज्ञात को जानने और ज्ञात प्राप्त करने की प्रक्रिया को बताता है। यह धी शब्द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड अर्थात समस्या समाधान, पर्यावरणीय और सामाजिक कारण और संविधान को भी खोजता है। यह धी शब्द नवीनता और आविष्कार का द्योतक है, सिद्धांत, विचार, वस्तुओं के आविष्कार का द्योतक है जो मानव जीवन में प्रगति लाता है। यह धी शब्द व्यवस्थित प्रक्रिया का द्योतक है जिसमें तर्क और बुद्धि का प्रयोग होता है। मैडम प्लीज कंक्लूड करिए। यह धी शब्द भविष्यवाणी को बताता है जिससे कि फोरकास्टिंग हम एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन डेवलपमेंट सेक्टर एंड वेरियस डायमेंशंस ऑफ जो भी इकोनॉमी है, जो विकसित भारत के लक्ष्य है, उसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ यह धी शब्द साक्ष्य आधारित निष्कर्ष को फलित करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विकसित भारत और कृत्रिम बुद्धिमत्ता दोनों एक दूसरे के ही अभिन्न अंग हैं, दोनों को अलग दृष्टि से ना देखा जाए। मेरा ये इस वेब संगोष्ठी के माध्यम से, ये भाषी मंच के माध्यम से तमत विद्वज्जनों से, जितने भी समस्त विद्वज्जन जुड़े हुए हैं, आग्रह है कि कृपया प्रबोधन करें, प्रशिक्षण करें, प्रकाशन करें, अनुसंधान ऐसा करें जो भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने विकसित ज्ञान परंपरा से, इस ज्ञान केंद्रित अर्थव्यवस्था से जोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोलने के क्रम में बहुत बार चुकी होंगी, बहुत बार रुकी होंगी, लेकिन आपने मुझे मौका दिया। आपका इस सत्र से में जुड़े सभी प्रतिभागी गणों का, इसमें इस सत्र में मेरे 10 पेपर प्रेजेंट किया प्रतिभागियों ने, और शेष जो है अगले सत्र में पेपर प्रेजेंट करेंगे, चूंकि लंच का समय हो गया है। और मैं इस सत्र में हमारे साथ जुड़े संतोष कुमार सिंह जी और राजीव कुमार जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और मैडम को भी, तीन नोट स्पीकर घर में जुड़ी सोनम घोष मैडम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हम लोग दूसरे सत्र में मिलेंगे इसके बाद 3 बजे। 3 तो बजे 3:30 बजे। डाली और नेहा मिश्रा जी आप लोग तैयार वेट कर रहे हैं, आप लोग को ही हम लोग लेंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक करते हैं, आधे घंटे के लिए, फिर जुड़ते हैं इसी सेशन में। जिनको भी पेपर प्रेजेंट करना है जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।